जी, once again, Assalamu alaikum. Here is BS Math, sixth semester, topic Comedy of Manners, and we have read three dramas. I mean, Pygmalion, The Way of the World, and The School for Scandals. तो आपके जो है, if you wanna ask something related to these dramas, especially The School for Scandal, the biography of the writer, the plot, the characterization of the play, do ask. I'll try my best to reply your question. First of all, do share the link to other students so that they may attend the class. Okay. तो आज के हवाले से मैं उम्मीद रखता हूँ you have been enjoying good health and enjoying your life in a healthy atmosphere. तो आज असाइनमेंट्स थी, कुछ बच्चों ने सबमिट करवा दी हैं, कुछ करवा रहे हैं, और आज प्रेजेंटेशंस भी हैं, ऐसा है ना जी? जी सर। यस सर। तो काइंडली आप में से जो इस वक्त क्लास में हाजिर हैं, कौन कौन बच्चे प्रेजेंट करना चाहते हैं? सर ग्रुप ए के मेंबर्स प्रेजेंट करेंगे पहले। एनीवन अगर ग्रुप ए तो करना चाहता ही होगा, जारी बात, दे आर असाइंड, बट उसके अलावा आप में से जो आप लोग प्रेजेंट हो, अगर आप लोग करना चाहते हो, मे बी वो आए ना, ऐसा है ना? जैसे हमायमा है, अरीज है, महविश है, कोमल है, सनासमो, आप में से अगर कोई प्रेजेंट करना चाहते हैं तो रेज योर हैंड्स। और presentation is very simple. You have to present your assignment, your topic, with the help of your material, written material. Just a minute, please. Excuse me. तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन है? आप में से कोई ऐसा नहीं जो ग्रुप फर्स्ट में हो आज? जी सर। जी सर हैं हम। ओके, तो लेट स्टार्ट कीजिए। ओके सर। अच्छा, कौन एक हमायमा है, दूसरी सर शमाइला, माइला है, अल्मा और शहनान है अलमास और is इकरा present खालिद है। over here. Ikra is over here. Ikra Khalid has raised the hand. Okay. First of all, Hamayma, please keep it up and be the initiative step for all the class and first drop of rain. Yes, please. ओके सर। जब आप असाइनमेंट सॉरी प्रेजेंटेशन दो, तो उसमें आपने सबसे जो अहम बात है वो ये ज़रूर करनी है कि आपने इन्वॉल्व भी करना है। आप किसी भी क्लासमेट का नाम ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे कि उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, you can ask question, you can ask their suggestions related to your presentation, right? So in this way they will be active and they will be active participant. Okay, please carry on. अस्सलाम वालेकुम क्लास। Myself Hima Ashraf and today is my topic of presentation biography of William Congreve. William Congreve was an English playwright and poet of the Restoration period. He is known for his clever satirical dialogue and influence on the comedy of manners style of that period. He was also a minor political figure in the British Whig Party. He was born 24 January 1670, Bardsey, West Riding of Yorkshire, England. He was died in 19 January Excuse me, 1720. just a minute. मुझे ये मैसेज आ रहे हैं, अलाउ कर दीजिए। मैं तो इधर से अलाउ किए हुए हैं। कोई ऐसा बच्चा है हु इज नॉट अलाउड बाय मी? सब हो गए हैं ना अलाउड? ओके,
Yes, please carry on. Okay, sir. His resting place is Westminster Abbey. His सिर्फ क्या टॉपिक नेम बता दे मुझे, क्योंकि मैं biography ये of William Congreve. बायोग्राफी ऑफ William Congreve. William Congring. Okay, but Humayma, if you have data in your cell phone, do share screen. Okay, so that we may look at the screen and understand your voice. बाज़ दफ़ा voice समझ नहीं आ रही होती because of gadgets. Okay, तो Okay, sir. सब बंदे ऐसा ही करें, अपनी स्क्रीन जरूर शेयर करें। इन दिस वे एक तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है, अटेंटिवनेस बढ़ जाती है। यस, पोर्ट्रेट लॉक खत्म कर लेते तो ज्यादा। Okay, sir. या गुड, इंटरेस्ट। प्लीज आवाज बता देना, कहीं से मतलब कट हो जाती है अक्सर ना बीच में से, तो जहां से कट हो जाए तो प्लीज फेलोज मुझे बता दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। ओके, थैंक यू। A biography of William Congreve. William Congreve was an English playwright and poet of the Restoration period. He is known for his clever satirical dialogue and influence on the comedy of manners style of that period. He was also a minor political figure in the British Whig Party. He was born 24 January 1670, Bardsey, West Riding of Yorkshire, England. He was died in 19 January 1729, aged 58, London, Great Britain. His resting place was Westminster Abbey. His occupation was playwright and poet. Nationality English. Period 1693 to 1700. He belongs to the Restoration period. And this is the timeline of Restoration period. Early life of William Congreve. William Congreve was born in Bardsey, Genrange, on an estate near Ledstone, West Riding of Yorkshire. Although Samuel Johnson disputed this, it has since been confirmed by a baptism entry for William, son of William Congreve of Bardsey, Grange, baptized 10 February 1669. His parents was colonial William Congreve and Mary Browning, who moved to London in 1672, then to the Irish port of Youghal. Congreve was educated at Kilkenny College, where he met Jonathan Swift, and at Trinity College in Dublin. He moved to London to study law at the Middle Temple, but preferred literature, drama, and the fashionable life. Congreve आप used the एक्सक्यूज मी, ये जी सर जोनाथन स्विफ्ट एक बड़ा ही वेयर ही मेट अ जोनाथन स्विफ्ट, क्या जोनाथन स्विफ्ट कोई कोई है, कोई रिमार्केबल पर्सनालिटी है कि जिसको वो मिला और उसका ये नाम दिया गया है? यस सर, ये भी मतलब उसी दौर का ही राइटर था, और ये इसका बाद में इसका बहुत अच्छा फ्रेंड भी था, बाद में इसका ओके, फ्रेंड भी बन गया था। ओके, गुड। Congreve used to pseudonym Silophil, under which he published in Congita or Love and Duty Reconciled in 1692. This early work, written when he was about 17 years of age, gained him recognition among men of letters and an entrance into literary world. He became a disciple of John Dryden, whom he met through gatherings of literary circle held at Wales Coffee House in Covent Garden district of London. Dryden supported him throughout his life, often composing complimentary introductions for his publications. Congreve was distantly related to Lady Elizabeth Hastings, whose family owned Ledstone and was part of the London intelligentsia. He wrote a number of articles about her in the Tatler magazine. Literary career. William Congreve shaped the English comedy of manner through his use of style and well-written dialogues. Congreve achieved fame in 1693 when he wrote some of the most popular English plays of the Restoration period.
This period was distinguished by the fact that female roles were beginning to be played predominantly by women and was evident in Congreve's work. One of the Congreve's favorite actresses was Mrs. N. Barcy Griddle, who performed many of the female lead role in his plays. आप लोगों को समझ आ रही है ना मेरी? जी आ रही है. Okay, thank you. His first play, The Old Bachelor, written to amuse himself while convalescing, was produced at the Theatre Royal Drury Lane in 1693. It was recognized as a success and ran for 2 weeks, 2 week period when it opened. Congreve mentor John Dryden gave the production rave reviews and proclaimed it to be a brilliant first piece. The second play to be produced was called The Double Dealer, which was not nearly as successful as the first production. By the age of 30, he had written 4 comedies, including Love for Love, premiered 30 April 1695, staged at the Lincoln's Inn Theatre, which was nearly as well received as his first major success. And The Way of the World premiered March 1700. This play was a failure at the time of production, but is seen as one of his masterpieces today and is still revived. He wrote one tragedy, The Mourning Bride, published in 1697, which was extremely popular at the time of creation, but is now one of his least regarded dramas. After the production of Love for Love, Congreve became one of the manager of Lincoln's Inn Fields in 1695. During that time, he wrote public occasional works. As a result of his success and literary merit, he was awarded one of his 5 positions of Commissioner for Licensing Hankey Coaches. Congreve's career as a playwright was successful but brief. He wrote only 5 plays, authored from 1693 to 1700s in total. This was partially in response to changes in taste, as the public turned away from the sort of highbrow sexual comedies of manner in which he specialized. Congreve may have been forced off the stage due to growing concern about the morality of his theatrical comedies. He reportedly was particularly stung by a critique written by Jeremy Collier, A Short View of the Immorality and Professions of the English Stage, to the point that he wrote a long reply, amendments of Mr. Collier's false and imperfect citations, although no longer on the stage. Congreve continued his literary art. He wrote the librettos of 2 operas that were being created at the time, and he translated the work of Morelli. As a member of Wing Kit Kat Club, Congreve's career shifted to Excuse me, no, sorry for interruption. ये 2 operas he created 2 operas. You know what is this opera क्या है? ये क्या उसने create किया था? सर वैसे सॉरी एक्चुअली ना इन लाइन्स की मुझे भी समझ नहीं आई थी, तो अब ये इनका मुझे नहीं थोड़ा आइडिया है. Where is that? Once again, would you like to read out these lines? He wrote the librettos for 2 operas that were being created at the time. He wrote 2 where is that line? आप क्या spelling क्या पढ़ रहे हो? As a member of ये वाला paragraph है as a member of वाला. No sir, इससे ऊपर वाली लाइन है. इससे ऊपर वाली लाइन है. He wrote the. Let me see. Congreve continued his literary art. He wrote the librettos for 2 operas. Okay. That were being created at the time. तो ये जो है ओपरास बेसिकली एक ड्रामा है, टाइप ऑफ ड्रामा कह लीजिए, म्यूजिकल ड्रामा को ओपरास कहा जाता है.
तो म्यूजिकल ड्रामा जो उसने लिखे थे। ओके सर, थैंक यू। बट इसमें जो मेन चीज है ना, वो यस सर। आपने एक ऑस्ट्रेलियन बिल्डिंग देखी होगी, जो ऐसे झुके झुके से है, वो ओपरा हाउस है, वहां पे ओपरा होता है। ठीक है जी। तो ओके ये सर। है। यस प्लीज। एज ए मेंबर ऑफ द विंग किट कैट क्लब। लॉन्ग लॉन्ग वोकल प्ले होता है। लॉन्ग वोकल प्ले का मतलब होता है सारा सिंग किया जाता है, और उसका जो टेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं लिब्रेटो। ओके सर। यस, टेक्स्ट को। As a member of the Wing Kit Kat Club, Congreve's career shifted the political sector and even a political appointment in Jamaica in 1714 by George I. Congreve continued to write, although his style changed greatly. During his time in Jamaica, he wrote poetry instead of full-length dramatic productions and translated the work of Homer, Genevieve, Ovid, and Heroic. His later life. Congreve withdrew from the theatre and lived the rest of his life on the residuals from his early work, the royalties received when his plays were produced, as well as his private income. His output from 1700 was restricted to the occasional poem and some translations. He collaborated with Vanberg on the 1704 English version of the play called Squire Theology by. Congreve never married. In his own era and through subsequent generations, he was famous for his friendship with prominent actresses and noble women for whom he wrote major parts in all his plays. These women include Brassy Griddle and Henrietta Goldfin, second Duchess of Marlborough, daughter of the famous General John Churchill, first Duke of Marlborough. Congreve and Henrietta most probably met sometime before 1703, and the Duchess subsequently had a daughter, Mary, 1723-1724, 64, who was believed to be his child. Upon his death, he left his entire fortune to the Duchess of Marlborough. As early as 1710, Congreve suffered both from gout and from cataracts on his eyes. He was involved in the carriage accident in late September 1728, from which he never recovered. Having probably received an internal injury, he died in London in January 1729 and was buried in Poets' Corner in Westminster Abbey. His works, The Old Bachelor, 16, published in 1693, The Double Dealer, 1694, Love for Love, 1695, The Morning Bride, 1697, and The Way of the Word, 1700. And this is the end of my presentation. प्लीज आप लोगों को समझ आ गई है तो बता दें, नहीं आई तो तब भी बता दें। Okay, fantastic. Hanji, anybody wanna ask if he or she is present at this class? I can ask any question related to William Congreve, who is an Irish playwright, about his works, about his style, okay, about his era. Once again, for your remembrance, do ask any question, just one or two, so that you may remember the presentation. Okay. तो पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। Hamaima is present over here to answer your. Good job, Hamaima. Fantastic. आप थैंक यू सर कमेंट्स। जी। सर ये जो डबल डीलर और ओल्ड बैचलर है, ये दोनों 1693 में पब्लिश नहीं हुई थी? हाँ जी, बताएं ये कब पब्लिश हुई थी, डबल डीलर एंड लव फॉर ओल्ड, लव फॉर लव। लव फॉर लव 1695 में और द डबल डीलर जो है 1694 में। नहीं, ओल्ड बैचलर और डबल डीलर, इन ओल्ड दोनों की बात बैचलर कर रही हूँ। ओल्ड बैचलर जो है वो 1693 में पब्लिश हुई थी
और जो डबल डीलर है वो 1694 में। अलग अलग हुई है, एक ही जगह, एक ही दफा तो नहीं हुई ना। नहीं, मतलब कि एक ही ईयर में हुई हूँ। एक ईयर में ये बात कर रही हो? हाँ जी, एक ईयर में। नहीं, एक ईयर तो नहीं है, वो 93 है, वो 94 है। उनका अलग ही है। द ओल्ड बैचलर जो 1693 में पब्लिश होती है, और जो डबल डीलर है वो नेक्स्ट ईयर 1694 में पब्लिश हुई है। तो फिर ये एक ईयर में कैसे हो गई? Okay, agar Shamaila, if you have some ambiguity, do share your proof if you have read somewhere that these two books are published in single or 1 year. Okay, तो सर, जो लेक्चर मैंने मतलब सुना था ना यूट्यूब से, उसमें ये दिया हुआ था कि ये दोनों ना 1693 में हुई हैं। इस वजह से पूछ रही थी। एक्सक्यूज मी, यूट्यूब में जो वॉइस लेक्चर्स होते हैं ना, उसमें काफी मिस्टेक्स होती हैं, और एट द एंड बाज दफा वो रिमूव कर भी देते हैं कि हमने इस प्रोनाउंसिएशन में गलती की है, ये रेफरेंस में गलती की है। ओके, उन्होंने यूं कह लो कि आपको पूरे नॉवल को 5 मिनट में समझाना होता है या 10 मिनट यस की सर। वीडियो होती है, तो दैट्स वाई वो कभी कभी बातें उनसे गलत हो जाती हैं। अगर ये रिटर्न इन्फॉर्मेशन अगर आप लेंगे विलियम कॉन्ग्रीव की, सबसे सिंपल सोर्स विकिपीडिया है, वहां से ले लीजिए, ठीक है। या कोई अथेंटिक आप लेना चाहते हैं तो आपकी रेफरेंस बुक्स दी गई हैं आपको कंटेंट लिस्ट में, राइट। वहां से आप कोई भी बुक डाउनलोड कीजिए, आपको एग्जैक्ट जो है ना विलियम कबरीर की पब्लिकेशंस मिल जाएंगी। तो यूट्यूब में अक्सर। ओके सर। नेक्स्ट टर्न किसकी है, कौन प्रेजेंट करना चाह रहा है जी? सर नेक्स्ट मेरी है। ओके, प्लीज कैरी ऑन। सर मैंने ना स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करनी। स्क्रीन को ऐसे ही। स्क्रीन को शेयर करने सब से ऐसे क्या ही। होगा? सब ऐसे ही करना चाह रही हूँ ना। बच्चे, स्क्रीन शेयर करने से क्या होने वाला है? मुझे सर सेंड कर दो मुझसे। फ्लिपकार्ट। हाँ जी। चलिए ठीक है, आप कर दें। ओके, और मैंने ये सेंड की हुई है। बहुत आसान है, ट्यूटोरियल वीडियो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, उसको देखें। स्क्रीन शेयर करने का जो है अमल सारे का सारा बहुत ही आसान है। हमीमा करनी है फिर। आप उसको मुझे कर व्हाट्सएप दो, कर दो। मुझे कर दो, मैं कर देती हूँ। हाँ, ये कौसर कह रही, मैंने भी तो बताया था, कौसर ने भी बिल्कुल आसान वो ट्यूटोरियल वीडियो सेंड की थी, सो सिंपल है। आप जैसे ही खुद शेयर करो तो हो जाएगी। ओके, अल्मास की भी आज प्रेजेंटेशन है जी। यस सर। ओके, वी रेडी, इसके बाद आप भी। अल्मास के अलावा कोई और प्रेजेंट करना चाहते हैं आज? यस सर। इकरा खा लेते हैं, ठीक हो गया। कुछ बच्चे शुरू में आए थे तो क्लास लेफ्ट ही कर गए। यस। Assalamu alaikum, respected sir and dear fellows. Today my presentation topic biography of William Congreve. Myself Shmaila Bibi. First of all, हम देखते हैं early life of William Congreve. William Congreve was an English poet and playwright of the Restoration period in the 17th and 18th century. He was the playwright of early 17th and late 18th century. After Shakespeare, he has a great contribution to the Restoration theatre. यानी कि शेक्सपियर के बाद इसके जो प्लेस थे और पोइट्री थी, वो बहुत ही अच्छा वर्क था। और शेक्सपियर और इसने अपने जो पोइट्री और ड्रामा थे उसमें शेक्सपियर के टॉपिक्स को ही अपना सब्जेक्ट बनाया था, और इसी वजह से इसके नाम के साथ विलियम ऐड किया गया, क्योंकि यह शेक्सपियर से इंस्पायर था और उसने उसके टॉपिक्स को अपने पोइट्री में और ड्रामा में यूज किया।
He was born 24th January 1670 in Badsey countryside area, Yorkshire, England. Congreve was baptized in 10th February 1670. Most celebrated of the Restoration comedy writer, playwright and poet हैं. His father name was Colonel William Congreve. He was commandant officer of army in Ireland. His mother name was Mary Browning. Congreve was educated at Kilkenny School. He also studied in Trinity College in Dublin, where he met Jonathan Swift. फर्स्ट विलियम कंग्रीव समझते थे कि जोनाथन स्विफ्ट के जो वर्क हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब इसने उसके वर्क को रीड किया तो फिर इसे पता चला कि जोनाथन स्विफ्ट जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट पोइट्स हैं. लिटरेरी कैरियर. कंग्रीव मूव टू लंदन टू स्टडी लॉ एट द मिडल टेम्पल बट प्रेफर लिटरेचर एंड ड्रामा. नेक्स्ट जो है विलियम कंग्रीव जो है लंदन चले गए ताकि वो एट द मिडल टेम्पल में लॉ का स्टडी कर सके, लेकिन जब वो लॉ से बोर हो गया तो उन्होंने लिटरेचर और ड्रामा को स्टडी किया. Congreve used the pseudonym Cleophile, under which he published Incognita. Its subtitle name Love and Duty reconciled in 1692. विलियम कंग्रीव ने अपने वर्क इनकॉग्निटा को पब्लिश करवाने के लिए एक फिक्शनल नेम यूज किया. सैडोनिम मीन फिक्शनल नेम, और उसका जो फिक्शनल नेम था वो क्लियोफिल था. और जो इनकॉग्निटा है, इसका इनकॉग्निटा का जो सब टाइटल है लव एंड ड्यूटी रिकॉन्सिल्ड है, इसलिए अपना ये वर्क 1692 में पब्लिश करवाया. दिस अर्ली वर्क रिटन व्हेन ही वाज अबाउट 17 इयर्स ऑफ एज. इसने अपना ये पहला वर्क 17 साल की उम्र में लिखा. He wrote a number of articles in the Tatler magazine. इसने टाटलर मैगजीन में कई आर्टिकल्स भी लिखे. He became a disciple of John Dryden, और विलियम कंग्रीव जो हैं जॉन ड्राइडन के शागिर्द थे. कंग्रीव achieved sudden fame in March 1693 with the production at the Theatre Royal Drury Lane of the Old Bachelor. कंग्रीव ने फेम अचीव की जब इसका वर्क जो है डबल डीलर पब्लिश हुआ. हिज नेक्स्ट प्ले द डबल डीलर played in November or December at Drury Lane, but did not meet with the same fame, but it later became the more critically admired work. जब इसका वर्क और डबल डीलर प्ले हुआ तो इसने सेम फेम अचीव नहीं की जिस तरह के ओल्ड बैचलर में अचीव की थी. Dryden wrote to my friend Mr. Congreve for admiration of Congreve after the double dealer. जॉन ड्राइडन ने एक वर्क लिखा टू माय फ्रेंड मिस्टर कंग्रीव, विलियम कंग्रीव को एडमायर करने के लिए, और ये वर्क उसने कब लिखा? डबल डीलर के पब्लिश होने के बाद. जॉन ड्राइडन इंक्लूडेड some of the Congreve's translation in a collection of miscellaneous poems called Examen Poeticum. जॉन ड्राइडन ने एक पोएम लिखी एग्जामिन पोएटिकम. इसमें उसने विलियम कंग्रीव की ट्रांसलेशन ऑफ मिसलेनियस पोएम, जो कि 5 पोएम्स के ट्रांसलेशन की कलेक्शन थी, उसको भी अपनी पोएम एग्जामिन पोएटिकम में इंक्लूड किया. इसके बाद है लव फॉर लव ऑलमोस्ट रिपीटेड द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट प्ले परफॉर्म्ड इन अप्रैल 1695. It was the first production staged for the new theatre in Lincoln's Inn Fields. जो फर्स्ट इसके प्ले थे ना वो ड्रूरी लैन रॉयल थिएटर में पब्लिश हुए थे, लेकिन जो लव फॉर लव था वो इसके न्यू थिएटर में पब्लिश हुआ जो कि लिंकॉल्न इन फील्ड में था. which was opened after protracted crisis in the old theatre royal, complicated by quarrels among the actors. कंग्रीव became one of the manager of the new theatre. कंग्रीव जो है वो न्यू थिएटर का मैनेजर बन गया. promising to provide a new play every year, और उसने वादा किया कि वो हर साल एक न्यू प्ले प्रोवाइड करेगा. Though Congreve significantly failed to carry out his promise of writing a play, air Lincoln's Inn Theatre, लेकिन वो अपने इस वादे को फुलफिल करने में नाकाम रहा. He showed his good intentions by letting them stage The Morning Bride, although it is now his least regarded drama. लेकिन इसने इस टाइम के दौरान मॉर्निंग ब्राइड पे वर्क काम किया और उसको पब्लिश करवाया, लेकिन ये
उस टाइम बहुत फेमस हुआ था, इसका जो मॉर्निंग ब्राइट ट्रेजेडी है वो बहुत फेमस हुई थी, लेकिन आज के टाइम यानी टुडे में ये बहुत लीस्ट रिगार्डेड ट्रेजेडी है उसकी। swelled his reputation immensely and became his most popular play. No further dramatic work appeared until March 1700, when Congreve's masterpiece, The Way of the World, एक्सक्यूज मी, was... कुछ Yes, स्टूडेंट्स sir. कहते हैं, नजमा कह रही हैं कि आवाज नहीं आ रही, शुमाइला एजाज कह रही हैं आ रही है। ठीक है, तो नजमा नहीं आ रही सर आवाज आवाज नहीं आ आपको? रही? अब मुझे तो आ रही, क्लियर आ रही है। सर पहले क्लियर आ रही थी, अब आ रही है। ओके, वन थिंग मोर, अगर इसके बाद जो प्रेजेंटर हैं उनमें से कोई द वे ऑफ द वर्ल्ड पे किसी की प्रेजेंटेशन है, किसी कोई देना चाहता है वे ऑफ द वर्ल्ड पे, आई मीन प्लॉट पे? यस सर, हमारे ग्रुप की है द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड आपके ग्रुप के कोई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? जी, नजमा परवीन। नजमा, आप आज रेडी हैं? आज नजमा है यहाँ पे? जी सर, प्लॉट है। ओके, तो आर यू रेडी टुडे टू रीड आउट द प्लॉट ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड? जी सर। ओके, यस प्लीज कैरी ऑन। The Way of the World was produced at Lynn Collins in फील्ड। द वे ऑफ द वर्ड जो है वो बेस्ट कॉमेडी है विलियम कॉन्ग्रीव की, जो कि जब ये पब्लिश हुई या परफॉर्म करवाई गई तो तब वो लीस्ट रिगार्ड थी, उसकी इतने फेम या इतनी सक्सेस हासिल नहीं हुई, लेकिन आज जो है वो विलियम कॉन्ग्रीव का मास्टरपीस इसे कंसीडर किया जाता है। दो इट इज नाउ हिज ओनली फ्रीक्वेंटली रिवाइव्ड पीस, दिस वाज Congreve's last attempt to write a play. When Congreve, Dryden and other writers was attacked by a critic, Jeremy Collier, in a short view of the immorality and profaneness of the English stage, 1698। रेस्टोरेशन पीरियड में जर्मी कॉलियर ने उस पीरियड में जितने भी राइटर्स थे ना, ये ऑथर्स थे। आप पानी पी लीजिए, आपका सांस फूल रहा है, आप इजीली बड़े कूल किया, क्योंकि माइंडेड, बड़े रेस्टोरेशन आराम। पीरियड के जो ऑथर्स और राइटर्स थे ना, उनका जो टॉपिक था वो सेक्सुअल टॉक्स था। यस सर। मैं कह रहा हूँ आप पानी पी लीजिए, आपका सांस फूल रहा है, हम्बल हो जाइए, कूल हो जाइए, आराम से पढ़िए। उस टाइम के जो ऑथर सर, नहीं आई एम फाइन। ओके, प्लीज कैरी ऑन। उस टाइम के जो राइटर्स और ऑथर थे ना, उनका जो टॉपिक था वो सेक्सुअल कंस्पायरेसी था, सेक्सुअल टॉक्स थी या कंस्पायरेसी पे बात करते थे, इसलिए जर्मी कॉलियर ने अपने इस वर्क के थ्रू उन पे अटैक किया। इस वर्क के बाद जो ड्राइडन थे उन्होंने तो एक्सक्यूज कर लिया, लेकिन विलियम कंग्रीव ने इस वर्क का रिप्लाई किया। इन रिप्लाई कंग्रीव वाज अमेंडमेंट्स ऑफ मिस्टर कॉलियर्स फॉल्स एंड इम्परफेक्ट साइटेशन 1698। इस वर्क के थ्रू विलियम कॉन्ग्रेव ने उस अटैक का रिप्लाई किया। बाय द एज ऑफ 30 years he had written 4 comedies and 5 plays। विलियम कॉन्ग्रेव ने 30 साल की उम्र में 4 कॉमेडीज एंड 5 प्लेज राइट की। कॉमेडीज, इसकी फर्स्ट कॉमेडी है द ओल्ड बैचलर 1693, डबल डीलर 1694 में पब्लिश हुई, मैंने 1693 लिखा था। अच्छा, लव फॉर लव जो है वो 1695 में पब्लिश हुई, द वे ऑफ द वर्ल्ड भी 1700 में पब्लिश हुई। इसके बाद है ट्रेजेडीज, द मॉर्निंग ब्राइड 1697 में पब्लिश हुई, द मॉर्निंग म्यूज ऑफ अलेक्सिस। उसके बाद है द टेयर्स ऑफ एमराइल इज फॉर एमिन टेस। उसके बाद है हम ट्रेजेडीज को कॉमेडीज को डिस्कस करते हैं। द ओल्ड बैचलर इज फर्स्ट कॉमेडी एंड पब्लिश एंड प्रोड्यूस इन 1693। द ओल्ड बैचलर, इसमें जो करेक्टर है हर्टवेट, वो ओल्ड बैचलर होता है और वो एक सिल्विया नामी औरत से मोहब्बत करता है। ही इज नॉट नोइंग शी इज अ प्रोस्टिट्यूट, लेकिन वो नहीं जानता कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। द डबल डीलर बाय विलियम कॉन्ग्रेव इज अ कॉमेडी। इसमें जो करेक्टर है लेडी टचवुड एंड जो मॉसवेल आदमी है, वो दोनों मिलके क्या करते हैं कि ब्रेक अप द मैरिज ऑफ सिंथिया प्लांट एंड मेलफोन्ट। इन दोनों की शादी जो है तोड़वा देते हैं। मास्कवेल इज द डबल डीलर ऑफ द टाइटल और लेडी टचवुड इज द पैशनेट एंड जेलस वीमन दैट फॉल्स इन लव विद हर नेफ्यू मेलफोन्ट।
उसके बाद लव फॉर लव इन दिस प्ले Congreve uses sexual gamesmanship to explore and satire the complexities and duplicities of his society. Together, The Way of the World, Congreve's last and final comedy, produced in 1700. This play was a failure at the time of production, but it's seen as one of his masterpieces today. The Morning Bride is a tragedy written by British playwright William Congreve. It performed in 1697 Theatre Lincoln's Inn Field. The play centers on Zara, a queen. Zara जो कि queen है, मैनल एक आदमी है जो कि किंग है ग्रेनाडा का। ये दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, लेकिन उनको डिसेप्शन होती है और नतीजे में क्या होता है कि जो मैनल है जो कि किंग है उसका मर्डर हो जाता है और इसके रिस्पॉन्स में ज़ारा जो है वो सुसाइड कर लेती है। उसके बाद है लेटर लाइफ। ही फेल इन ओके लव ओके ओके विद मिस। कौसर कौसर परवीन इज ओवर हियर। क्या आपको आवाज आ रही है नजमा की? Yes, sir. ओके यस प्लीज कैरी ऑन। ही फेल इन लव विद मिस बैट्रिक नेल्सन। विलियम कंग्रीव और बैट्रिक नेल्सन एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन बैट्रिक नेल्सन के अंकल की वजह से इन दोनों की शादी ना हो सकी, जिसमें दोनों ने फैसला किया कि वे जहर खाएंगे। मिस बैट्रिक नेल्सन ने तो जहर नहीं खाई, लेकिन विलियम कंग्रीव ने जहर खा ली थी, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हुई। उनकी डेथ तो नहीं हुई, लेकिन उनको बहुत सी डिजीजेज हो गई। बट देयर मैरिज वाज नॉट ड्यू टू बैट्रिक्स अंकल। बैट्रिक वाज मैरिड टू होरैक्वेल, लेकिन बैट्रिक की जो शादी है वो होरैक्वेल नाम एक आदमी से हो गई। एज अ मेंबर ऑफ बिग किट कैट क्लब, इसके बाद जो है विलियम कंग्रीव ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और वो बिग किट कैट क्लब के जो कि एक पार्टी थी उसके मेंबर बन गए। कंग्रीव कैरियर शिफ्टेड टू द political sector in Jamaica in 1714 by Judge 1. जज 1 ने 1714 में जमाइका में विलियम कंग्रीव को पॉलिटिक्स में अपॉइंट कर लिया। ड्यूरिंग हिज टाइम इन जमाइका ही रोट पोएट्री इंस्टेड ऑफ फुल लेंथ ड्रामेटिक प्रोडक्शन। जमाइका में अपनी टाइम के दौरान उसने ड्रामा की बजाय पोएट्री लिखी। इन जमाइका ही ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ होमर, ओविड एंड होरैक। और जमाइका में ही उसने होमर, ओविड एंड होरैक के वर्क्स को ट्रांसलेट किया। Congreve never married, but he was famous for his friendships with prominent actors and noble women. These women include Anne Blackgirdle, Henrietta Godolphin, and second Duchess of Marlborough. विलियम कंग्रीव ने शादी नहीं की, और लेकिन इसकी बहुत सारी औरतों से दोस्तियां थी। In 1710 में he suffered both from gout and cataracts on his eyes. 1710 में विलियम कंग्रीव को गोट के साथ साथ उनकी आंखों में मोतिया भी उतर आया। He was involved in a carriage accident in late September 1828 from which he never recovered. और सितंबर 1728 में उसका कैरेज एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो कभी दोबारा रिकवर ना कर पाए। अपॉन हिज डेथ ही लेफ्ट हिज एंटायर फॉर्च्यून टू द डचेस ऑफ मार्लबरो। और अपनी डेथ के बाद उसने अपनी दौलत जो है वो सेकंड डचेस ऑफ मार्लबरो की छोड़ी। ही इज बरीड इन द पोर्ट्स कॉर्नर इन वेस्टर्न अबी, और वो वेस्टर्न अबी में बरीड है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय जस्ट सेल्फ। मीन हाँ कौसर कह रही है कि बुरी बात फॉर विलियम कंग्रीव। कौसर क्या बात बुरी लगी आपको विलियम कंग्रीव की? सर उसने शादी नहीं की। ओके बिकॉज वो जिससे शादी करना चाहता होगा वो मिली नहीं उसने, इसलिए वो रिमेन बैचलर। ये भी तो हो सकता है। सर फिर उसने दोस्तियां क्यों की? वो जिससे उसने दोस्तियां की वो बता तो रही है कि उनके साथ कोई ना कोई रीजन हो गई। दैट्स व्हाई शी अनमैरिड। ओके फैंटास्टिक Shumaila, fantastic effort. You have थैंक यू सर। completed your assignment in a nice way. That's the way of presenting something. आपने not only read out किया, आपने साथ साथ elaborate भी किया। Fantastic. Okay. So who is next presenter? Ikra Khalid, Almaz, Najma,
wanna present आप फीडबैक दे सकते हैं, अप्रिसिएशन दे सकते हैं। इफ़ यू लाइक the presentation of Shumaila Bibi, do comment on that so that his her morale may be high. Okay. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, स्क्रीन शो हो गई? हाँ जी, बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, बट इसे पोर्ट्रेट लॉक ख़त्म कर दें तो दी बेस्ट है। वो कैसे करेंगे? जब आप शटर ओपन करेंगे उसमें पोर्ट्रेट लॉक होगा। अभी इसके ऊपर से नीचे शटर ओपन कीजिए। जैसे शटर ओपन होगा आपके सेल फोन का, उसमें लिखा होगा एक गोल से दायरे के नीचे पोर्ट्रेट लॉक, उस पर क्लिक कर दीजिए। पोर्ट्रेट लॉक सर, इधर तो कुछ भी नहीं शो हो रहा है सर। तुम नीचे वो करो, स्क्रॉल करो नीचे को अपने फोन को ना, ऊपर से नीचे को स्क्रॉल कीजिए, फिंगर टिप रखिए एट द टॉप, नीचे को कीजिए, आपका जैसे पहले शटर ओपन हो जाएगा। ऐसे नहीं, ऊपर टॉप पे रखिए जहाँ पे कैम है, उससे नीचे उंगली कीजिए तो शटर ओपन हो जाएगा। वो जहाँ पे फ्लाइट मोड होता है, नाइट मोड होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है आपने ये चीज़ इकरा ऑटो रोटेट करो अपनी स्क्रीन को। वो आ गया, वो देखो आया तो, हाँ जी ये आ गया। यहाँ पे देखो पोर्ट्रेट लॉक होएगा, ये रेजोल्यूशन होगा लिखा हुआ। हाँ चले, कोई बात नहीं, कैरी ऑन प्लीज। आवाज क्लियर आ रही सबको? इकरा की आवाज सबको क्लियर आ रही? नो सर। हेलो। हाँ जी, अब क्लियर है, प्लीज कैरी ऑन। Okay. The topic of my presentation is William Congreve. William Congreve was born in 24th of January 1670 and died in 19 January 1729. He was an English playwright. जस्ट अ मिनट, एक मिनट। अच्छा, ऐसा है कि विलियम कॉन्ग्रीव के अलावा किसका टॉपिक है आज जिसने द वे ऑफ द वर्ल्ड का प्लॉट तैयार हो या कुछ, ये बाद में सुन सकते हैं। बिकॉज हर टाइम हम पहले भी विलियम कॉन्ग्रीव, फिर विलियम कॉन्ग्रीव, अब फिर विलियम कॉन्ग्रीव, फिर वो होमोटोनियस क्रिएट हो जाती है जरा। सर जी जी नजूम, सर ग्रुप के हिसाब से नहीं होगा, मतलब आज एक ग्रुप कंप्लीट कर ले तो फिर नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट। वो तो ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी और के पास है तो ऐसे तो वो जो है बड़ी यकसानियत सी हो जाती है। तो ज़रूरी तो नहीं विलियम कॉन्ग्रीव है, द वे ऑफ द वर्ल्ड की प्लॉट भी हो सकता है, और भी कई बातें हो सकती हैं। किसी को अगर है तो ये एनीबॉडी एल्स? सर, वे ऑफ द वर्ड के कैरेक्टर्स भी हैं हाँ जी, हमारे ग्रुप के पास। वो किसके पास है? वो है स्टूडेंट सर मेरे पास है। हाँ जी, सना खालिद प्लीज आप। जी सर, हमारा ग्रुप है कौसर प्रवीण, मैं विजवार, नजमा प्रवीण, सना खालिद। हाँ जी, तो ये करेक्टरिस्टिक्स पढ़ दीजिए, करेक्टराइजेशन पढ़ दीजिए। ओके, आप बाद में इकरा बाद में प्रेजेंट कर लीजिए। सर आप ले ही लेते पहले। देख लो, कुछ यकसानियत हो जाएगी, बार बार विलियम कॉन्ग्रीव एंड एस। चलें स्टार्ट करें, ठीक है। He was an English playwright and poet of the Restoration period. He is known for his clever satirical dialogue and influence on the comedy of manners styles of that period. He was also a minor political figure in the British Whig Party.
William Congreve was born in Bradshaw, Yorkshire, England, near Leeds. His parents were William Congreve, 1637 to 1708, and Mary Nee Browning, 1636 to 1715. And then the family moved to London in 1672. He recollected again in 1674 to the Irish port town of Youghal, where his father served as a l- lieutenant in the Royal Irish Army. Congreve spent his childhood in Ireland, where his father, a cav- cavalier, had settled during a reign of Charles II. Congreve was educated at Kilkenny College, where he met Jonathan ये Swift. वर्ड है कैवलियर भी पढ़ते हैं इसको, शेवलियर भी पढ़ते Cavalier, हैं, एंड शेवलियर। okay. तो And where he met Jonathan Swift and at Trinity College in Dublin. Upon graduation, he matriculated in the Middle Temple in London to study law, and he but preferred literature, drama, and the fashionable life. Congreve used the Congreve used the uh, pseudo- pseudonymy Ciliophil, under which he published. स्यूडोनिमी, स्यूडोनिमी कहते हैं कि एक फर्जी नाम लेके अपने नाम से नहीं शाये किया। अपना नाम तो विलियम कॉन्ग्रीव था, बट वहाँ पे उसने कोई और नाम रख लिया, ABC, कोई भी नाम से अपनी पब्लिकेशन करता है, इसे कहते हैं स्यूडोनिमी। Okay. um, or Love and Duty in 1692. This early work, written when he was about 17 years of age, gained him recognition among men of letters and entrance into a literary world. He became a disciple of John Dryden, whom he met through gathering of literary circle held at Will's Coffee House in the Covent Garden district of London. John Dryden spotted Congreve's work throughout his life, talking the form of complimentary introduction written from some of Congreve publications. His first play of the Old Bachelor, written to the amuse himself, was produced at the Theatre Royal, uh, Dru- Drury Lane in 1693. It was recognized as a success and ran for a 2-week period when it opened. Congreve mentor John Dryden gave the production rave reviews and proclaimed it to be a brilliant first piece. He wrote one tragedy, The Morning Bride, in 1697, which was extremely popular at the time of creation, but is now one of the least regardless drama. After the production of Love for Love, Congreve became one of the manager for the uh, Lincoln's Infield in 1695. During that time, he wrote public occasional verses, and he was rewarded one of the 5 position of commissioner for licensing hackney coaches. Congreve's career as a playwright was successful but brief. He only wrote 5 plays, authored from 1693 to 1700 in total. This was partly in responses to challenge in taste as the public turned away from this sort of um, highbrow sexual comedy of manners in which they specialized. Congreve may have been forced off the stage due to growing concern about the morality of the theatrical comedies. He reportedly he reportedly was particularly stung by a critique written by J- Jeremy Coiler. Jeremy Coiler, basically a short view of the immortality and professionist of the English stage, to the point that he wrote a long relay reply. Although no longer on the stage, Congreve continued his literary art. He wrote the
librettos for two operas that were being created at the time. आप सेल And फोन की भी स्क्रीन को ऊपर नीचे करते जाइए, जहां से आप पढ़ रहे हैं वो भी हमें शो हो जाएगी फिर में। so कर रही हूँ. And he translated the work of Mahler. As a member of the Wing Kit Kat Club, Congreve career shifted to the political sector and even a political appointment in Jamaica in 1714 by George I. Congreve continued to write, although his style changed greatly during his time in Jamaica. He wrote poetry instead of length of dramatic production and translated the work of Homer, Ovid, and Ho- Horace. And the plays are the Old Bachelor was published in आप 16. आप वाकिफ हैं, होमर से भी वाकिफ हैं। ही वाज अ ब्लाइंड पोएट एंड हिज fantastic poem was an epic that's name was Odyssey। ओके, ओविड से भी वाकिफ हैं। ओविड का जो हमने पिग्मेलियन पढ़ा है उसमें ओविड का रेफरेंस आया था। ओविड वाज एन इटालियन राइटर हु रोट अ बुक मेटामॉर्फोसिस, और उसी से जो है ना करेक्टर लिया गया है पिग्मेलियन का। ओके, होरेस वाज अ फैंटास्टिक पोएट है, इसका भी जो है अभी रेफरेंस आप ये देख के बता दीजिएगा। राइट, Love प्लीज for गेम। Love from Morning Bride 1697 and the last one is The Way of the World 1700. बस. Fantastic, you have created slideshare and in this way you have एक्सक्यूज मी इकरा, वो आपने बताया था ना विलियम कॉन्क्रीव ने एक ट्रेजेडी लिखी थी, वो एक्चुअली मैं सुन नहीं पाई, शायद वॉइस की वजह से कोई, तो वो कौन सी बताई थी आपने, कौन सी ट्रेजेडी लिखी थी विलियम कॉन्क्रीव ने? कीजिए। विलियम कॉन्ग्रीव ने कौन सी ट्रेजेडी लिखी थी? The Morning Bride. द मॉर्निंग ब्राइड, तो ये नेम था उसका ट्रेजेडी का। और एक ही सिंगल ट्रेजेडी लिखी थी उसने, बाकी उसने कॉमेडीज लिखी थी। ओके, फैंटास्टिक। तो कमेंट्स दीजिए इकरा खालिद ने कैसा प्रेजेंट किया है चैट बॉक्स में। आई एम वेटिंग योर कमेंट्स अबाउट इकरा खालिद प्रेजेंटेशन। ओके, तो नेक्स्ट, हु इज द नेक्स्ट प्रेजेंटर प्लीज? मैं करूँ प्रेजेंट? सना खालिद, व्हाट्स योर टॉपिक? सर प्लॉट है करेक्टर्स हैं वे ऑफ द characterization of William, I mean the way of the world। yes please। सर मैं अभी रहती हूँ ग्रुप ए में से। आपका अल्मास क्या टॉपिक है? सर बायोग्राफी ऑफ विलियम कॉन्क्रीव। ओ तालियां, चलिए आप बाद में दे देना। ये सना खालिद जो है ना ये प्रेजेंट करने जा रही हैं द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड। यस प्लीज। स्क्रीन शेयर कर दीजिए वो भी पोर्ट्रेट लॉक खत्म कर सकें। जब तक ये स्क्रीन शेयर होती हैं आप इकरा खालिद की प्रेजेंटेशन पे कमेंट्स दीजिए। सब बच्चे जो है ना सभी अपने अपने कमेंट्स दीजिए, कैसी लगी आपको इसकी प्रेजेंटेशन। इमोजी से बेहतर है आप अपने कुछ वर्ड्स लिख दीजिए सो दैट शी मे फील। Excuse me, sir. यस सर सर मैं ये कहना चाह रही थी कि नेक्स्ट जब हम प्रेजेंटेशंस लें तो उसमें अगर दो ग्रुप्स को असाइन किया गया हो, मतलब प्रिपरेशन उन्होंने की होगी, मतलब तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक प्रेजेंटर मतलब फर्स्ट ग्रुप से ले लें, फिर नेक्स्ट में सेकंड से ले लें, इस तरह से फिर मतलब सेमनेस भी नहीं होगी।
हाँ जी, मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये वॉइस मैसेज करूंगा कि गेट बी प्रिपेयर्ड ऑल द ग्रुप्स। ओके, किसी को भी कहा जा सकता है, तो इस ताकि डाइवर्सिटी क्रिएट हो, ये मोनोटोनियस क्रिएट ना हो, सेमनेस क्रिएट ना हो। तो आज मैं वॉइस करूंगा ताकि कल जो है ना डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है ना हमें सुनने को कुछ मिले। ठीक है ना जी? ओके सर। नाइस सजेशन। यस प्लीज सना। अलमास कहती हैं हार्ट्स हार्ट्स, और हुमायमा कहती है नाइस वन, एंड कोमल कहती है नाइस प्रेजेंटेशन का क्लियर वॉइस। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे स्टार्ट होना है? 4:10 बजे तक तो कोई लेक्चर नहीं है ना? सर 4:15। ओके, तो ये हमारी ये प्रेजेंटेशन, हमारा लेक्चर जो है ना 4:10, एक्चुअली ये स्टार्ट होना था 2:15 पे। ओके, तो बिकॉज देर वॉज अ प्रॉब्लम इन माई गैजेट्स, दैट्स वाई आई एम सॉरी फॉर दैट, ये लेट हो गए, वरना हमारा जो है ना 2:15 शार्प पे लेक्चर स्टार्ट होना था। तो कल भी इंशाल्लाह ताला 2:15 पे स्टार्ट होगा। तो मैं वॉइस मैसेज कर दूंगा सबको ताकि बी प्रिपेयर ओके रहें सर। 2 पे, so that we may complete our lecture within time. Yes or no? जी सर। सर स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हाँ, कढ़ाइयाँ हो रही, कढ़ाई गोश्त ये वो फलाना टपकान, बट वो नहीं हो रहा। नाइस सर वो रेसिपी। अब स्क्रीन शो तो हो रही है बट ब्लैंक है बिल्कुल ना। सर पता नहीं फाइल ओपन नहीं हो रही, क्या इशू आ रहा है? आ रही आ रही आ रही है, ओपन हो रही है। आप किसी और को शेयर कर दो ताकि वो स्क्रीन शेयर कर देगा। हाँ जी, बिल्कुल आ गई है। सर मैं वैसे ही प्रेजेंट कर दूं? क्या हो रहा है, ये स्क्रीन ऊपर नहीं हो रही क्या? सर पता नहीं क्या इशू आ रहा है, पहले तो बिल्कुल सही था, अभी कुछ हो रहा है। एक्चुअली आप ये सना, फाइल कौसर को सना सेंड कर अपने दीजिए। मोबाइल को साफ करो ना, मतलब मटेरियल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। सर इस वजह 22 से जो है ना वो। मिनट। हाँ जी, आपने सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा की हुई है, सब्सक्रिप्शन जितनी भी है ना वो सेटिंग में जाके उसको डिलीट कर दीजिए। तो लोड सर मैं बहुत तुम्हें है। सेंड करती हूँ। हाँ, कौसर को सेंड कौसर कर तुम दीजिए। स्क्रीन शेयर कर दो। सर तब तक मैं प्रेजेंट कर दूं? हाँ जी, आप कैरी ऑन कीजिए अलमास आप।
सर ना आप तब तक उन्हें शेयर करें स्क्रीन, सॉरी सेंड कर दें कौसर को, ठीक है? जी तो वो सर। फिर कर देंगे। अलमास प्लीज। वेलकम इकरा। इकरा कभी Assalamu alaikum everyone. My name is Salmas Rahman Walaikum and Assalam. today I am going to discuss biography of William Congreve. Anybody can tell what is biography? जी कोई बताना पसंद करेगा? व्हाट्स बायोग्राफी? ये कौसर आप बायोग्राफी बता दें। बायोग्राफी मीन्स कि एक इंसान की जो उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, या वो कहाँ उसने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, और ये सारी चीज़ें उसकी इंसान की उससे रिलेटेड जो उसकी क्वालिटीज़ कह लें, या और फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ, इसको कहते हैं Someone's Okay. life history. उसकी। हाँ हाँ, लाइफ हिस्ट्री। Order Yes, लिखना life है. history. ओके। रिटन लाइफ हिस्ट्री इज अ बायोग्राफी। बायो मीन जिंदगी, ग्राफी मीन रिटन। ओके। Which is someone else. इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, an account of someone's life written by someone else. Now I am going to describe the biography of William Congreve. Basically, he was an English playwright, a poet, and he was the one of most brilliant writer of Restoration comedy. After Shakespeare, he has a great contribution to the Restoration theatre. Who was Shakespeare? Shmaila? जी. Who was Shakespeare? Shakespeare belonged to Elizabethan era. Yes, he was an English poet and dramatist. Now, early life of William Congreve. He born in January 1670 in Bardsey Grange, Yorkshire, England. His parents were William Congreve and Mary Browning. He attended his school in 1681 at Kilkenny, and then he moved to Trinity College, Dublin. Here he met Jonathan Swift, his lifelong friend. Jonathan Swift was an Irish writer and he also belonged to Restoration period. Upon graduation, he matriculated in Middle Temple in London to study law. But he felt himself pulled toward literature, drama, and the fashionable life. He became a disciple of John Dryden. Who was John Dryden? Yes, anybody else wanna reply? Who was John Dryden? John He Dryden was was he also was a English poet. poet and dramatist. Okay, but he is not a disciple. He was a disciple. Okay, sir. Yeah. Now, literary career. His literary career started from 1692. He was influenced by Plato, Aesop, and Shakespeare. In March 1693, he achieved certain fame with a production at the Theatre Royal Drury Lane of The Old Bachelor, written, he said, in 1690 to amuse himself during convulsions. This play was appealed to the audience. As Congreve progressed, his speech became more modulated, more musical, etc. He wrote all his best plays before he was 30 years of age. His most successful work was his last play, The Way of the Word. Later life. Unfortunately, his career ended as soon as it began.
Congreve withdrew from theatre and lived rest of his life on residuals from his early work. He never married in his life. He was famous for his friendships with prominent actresses and noblewomen, including Anne Brace Griddle, for whom he wrote major parts in all his plays, and Henrietta Godolphin, second Duchess of Marlborough, whom he had met by 1703 and with whom he had a daughter, Mary. Notable works: The Old Bachelor, 1693, The Double Dealer, 1694, Love for Love, 1695, The Morning Bride, 1697, The Way of the World, 1700. Death: after an accident with his coach in 1728, where he may have suffered internal injuries, William Congreve died on 17th January 1729. He is buried in the Poets' Corner of Westminster Abbey. That's all, sir. अल्मास, Yes. आपने उनकी वो जो डेट ऑफ डेथ है वो आपने लिखी हुई है 19 जनवरी और आपने बोला 18, तो क्या वो 18 जनवरी में ही फौत हुए थे? 19th बोला है मैंने. अच्छा, फिर मुझे सुनने में ऐसा लगा. Okay, I would like to say first of all आप सब अपने अपने comments दीजिए about the Almas Rahman presentation. She has presented fantastically. Her accent, her way of presenting, her coolness, her well confident tone and accent is very appreciable. But one thing I would like to share all of you before presenting your presentation. Do edit the, do revise your content, especially वो words जो आपको confuse करते हैं in pronunciation के लिहाज से, मीनिंग्स के लिहाज से, उनको एक दफ़ा फिर से देखिए, बिकॉज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फैसिलिटी टू मेक देयर प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट. आपको पता है सबके पास वॉइस डिक्शनरी मौजूद है, तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन लिख सकते हैं, गूगल बता देता है, तो आप लाजमी तौर पे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो देख लिया कीजिए जिसके बारे में आपको एम्बिग्यूटी हो. और जो वर्ड्स हैं, स्पेशली रेफरेंसेस हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, ओविड हैं एंड अदर जो जोनाथन स्विफ्ट हैं, इन पर्सनैलिटीज़ का नाम जैसे आता है जॉन ड्राइडन है, शेक्सपियर है, तो नॉट ओनली विलियम कॉन्ग्रीव को ही हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, तो उसके जितने मुतल्लकात होते हैं, उसके जो रिलेशंस होते हैं, उसका जो इरा होता है, उसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए. ओके. And at the end, I would like to say Almas fantastically presented this is assignment. अगरचे थोड़ी वो short थी, but fantastically presented. Okay. थैंक यू सर. सर एक्चुअली ना आपने सडनली सुबह बताया कि आई ग्रुप ए की प्रेजेंटेशन है, तो फिर मैंने अपनी असाइनमेंट जो थी वो शॉर्ट कर दी थी, मतलब मेन पॉइंट से पिक किए थे. ओके, एक्चुअली मुझे कल बता देना चाहिए था, लेकिन कल जो है वो कुछ मौसम ही दिल फरेब था, कुछ उसका रोमांस छाया रहा, कुछ बिजली ने भी वॉर किए रखा थोड़ा सा, तो वो मैंने करम को फ़ोन नहीं कर सका, बिकॉज मैंने उसे कहा था, वैसे मैंने पहले मैं यही समझता था कि शायद मैंने उससे कहा हुआ है ना, 2-3 दिन पहले कहा था कि आप ग्रुप्स को अलर्ट करते हैं, अनाउंस करते हैं, तो फिर आज सुबह मैंने उसको जस्ट याद दहानी कराई जब मैंने ग्रुप में देखा कि उसकी अनाउंसमेंट नहीं आई थी, तो मे बी इस वजह से कुछ हो गया ना. फॉर नेक्स्ट टाइम जो है जो स्टूडेंट्स रहते हैं, अब हाँ जी, वो कौसर परवीन शेयर हो गई आपको फाइल? यस सर. हाँ, तो शेयर कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए. यस,
Once again, we are ready to listen who is William Congreve and what are the works of, the way of the world, characterization and plot. Yes. And who is the presenter, please? So toilet left the meeting. हैरत की बात है, कोई लड़का चमकता ही नहीं है क्लास में। जी सर। हाँ, यस यस प्लीज कैरी ऑन। ये किसने प्रेजेंट करना है ये? सर मैंने करना है, सना खालिद। ओके सना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम क्लास। माय टॉपिक इज कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले वे ऑफ द वर्ड। सबसे पहले जो हमारे पास पहला कैरेक्टर है वो है मिराबेल, जो प्रोटैगनिस्ट हैं इस प्ले के। मिराबेल जो है, एडवर्ड जो है वो एक फैशनेबल, इंटेलेक्चुअल और क्लेवर मैन है अपने टाउन का ना, और बहुत पॉपुलर है लेडीज के दरमियान। तो जो मिसिस फिनल है ना, जो मिस्टर फिनल की जो वाइफ है, वो शादी से पहले जो थी ना, वो मीराबल के साथ उसका अफेयर चल रहा था। लेकिन अब मतलब शादी के बाद जो है वो मतलब उनका रिलेशन जो है वो खत्म हो चुका है, वो जस्ट फ्रेंड्स हैं। जो मीराबल है वो मतलब अगर से बहुत सारी लड़कियां जो हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हर किसी के जो सेंटिमेंट्स हैं ना उनको मतलब रिप्लाई नहीं करता। उसके बाद हमारे पास है मिलामेंट। मिलामेंट जो है वो मोस्ट इंडिपेंडेंट वुमेन है हमारे पास इन जितने भी करेक्टर्स हैं उनमें से। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जैसे वो अपने आप को इस तरह नहीं समझती कि मुझे किसी आदमी की सपोर्ट होनी चाहिए। जैसे उसको मीराबेल ने शादी के लिए बोला था तो वो उसके पीछे रश नहीं कर गई थी कि फौरन से हाँ एग्री कर दिया था, लेकिन उसने अपनी कुछ कंडीशंस रखी थी कि मैं तुमसे शादी फिर करूंगी अगर तुम ये वाली कंडीशंस जो हैं उनको मतलब मानोगे तो। उसके बाद जो मिलामेंट है उसने उनको और मीराबेल को परमिशन चाहिए लेडी विशफोर्ड की अपनी शादी के लिए। अगर वो लेडी विशफोर्ड की परमिशन के बगैर शादी करते हैं तो उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो फॉर्चून है, वो उनको नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पे जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो लेडी विशफोर्ड की मतलब परमिशन लेना था। तो उसके अगर परमिशन से शादी करेंगे तो फिर उनको ये जो फॉर्चून मिलेगी। एक्सक्यूज मी, ये जो लेडी विशफर्ड है ये मिलामेंट की क्या लगती है? उसकी आंट है। उसकी आंट है, दैट्स वाई उसकी परमिशन जो है जरूरी है। और उसकी गार्डियन भी है, ऐसा ही है? जी सर। ओके, गार्डियन भी है और उसकी आंट भी है। ओके, मिलामेंट की। जी ठीक है। सर। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कैरेक्टर है वो है लेडी विशफुट। लेडी विशफुट जो है वो एक वेल्दी ओल्ड विडो है जो कि एराबेला फिनल की मदर है, जो कि मिसिस फिनल की वाइफ है। वो जो है वो अपने आप को यंग मतलब दिखाने की कोशिश करती हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं और अपने आप को यंगर ट्रीट करती हैं अपनी एज से, कि जैसे मैं अभी मतलब यंग हूँ। और बहुत डबल स्टैंडर्ड सी मतलब विमेन है। वो अपनी बेटी को तो कहती है कि मतलब मर्दों से मेल जोल नहीं रखना, बात नहीं करनी, लेकिन उसका खुद का जो एटीट्यूड है वो ये है कि वो मतलब बहुत ज्यादा फ्रीली बात करती है ना मर्दों से। जो मीराबल है वो मतलब मिलामेंट से शादी करने के लिए मतलब उसकी चापलूसी करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लेडी विशफुट है वो समझती है कि मतलब वो मुझे लाइक करने लग गया है। लेकिन उसकी ये जो गलत फहमी है मिसेज मारवुड मतलब खत्म करती है कि वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी जो मतलब भतीजी है मिलामेंट उसको पसंद करता है। तो इसी तरह वो फिर उसके अगेंस्ट हो जाती है। वो कहती है जो मर्जी हो जाए मैं उसको परमिशन नहीं दूंगी मीराबेल को और मिलामेंट को शादी करने की। बट एट द एंड मतलब वो इतनी मजबूर हो जाती है कि उसको परमिशन देनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास जो है वो मिस्टर फिनल है। मिस्टर फिनल जो है वो इस प्ले के एंटागनिस्ट हैं, विलन है। फिनल जो है वो बहुत ही इनसिक्योर से किस्म का पर्सन है और बहुत ही मतलबी सा। उसकी रेपुटेशन भी अपने टाउन में कुछ अच्छी नहीं। अगरचे हम मीराबेल में भी देखते हैं कुछ नेगेटिव क्वालिटीज हैं, लेकिन अगर हम उसको मिस्टर फिनल से कंपेयर करें तो मिस्टर फिनल में ज्यादा वो नेगेटिव क्वालिटीज हैं। वो लेडी विशफुट की जो बेटी है एराबिल्ला उसका सेकंड हस्बैंड है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसिज फिनल।
मिसेस फिनल जो है उसका मतलब प्ले में काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रोल है। वो मिस्टर फिनल जो है उसके अगेंस्ट इसका कैरेक्टर है। वो जब उसको मीराबेल के प्लान के बारे में पता चल जाता है कि मीराबेल ने प्लान बनाया हुआ है उसको इस सब से बचाने के लिए, जब वो कहता है कि अपनी सारी फॉर्चून लेडी विशफुट को और मिलामंट को के मुझे दे दें, तो उसके बाद वो बहुत मतलब जब उसे सारे प्लान का पता चल जाता है, उसने अपनी पहले ही जो फॉर्चून होती है वो मीराबेल के नाम कर दी होती है ना, कि अगर कल को ये चीट करता है मिस्टर फिनल तो उन्हें अपनी फॉर्चून से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। और जब उसे सारे मिलाबल के प्लान के बारे में पता चल जाता है तो वो फ्रीली मतलब बात करती है और उसके मतलब ओवरहेड करती है। जो मिस्टर फिनल है वो मिसिस फिनल पे डिपेंडेंट है मतलब मनी वगैरह के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है हमारे पास है मिसिस मॉरवुड। मिसिस मॉरवुड जो है वो फिनल की मिस्ट्रेस है और ये जो है वो पहले मतलब इसका अफेयर जो था वो मीराबेल के साथ चल रहा था, लेकिन मीराबेल जो है ये मीराबेल को लाइक करती है लेकिन मीराबेल जो है वो इसको लाइक नहीं करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास जो है वो यंग विटवुड है। ये जो सर विलफुल विटवुड है उसका छोटा भाई है। इसका मतलब बहुत थोड़ा सा है ना ड्रामे में बताया गया कि ये भी मतलब फैशनेबल सा है और प्लेजेंट सा है। वो ट्राई करता है मिलामेंट को मतलब अप्रोच करने की, बट सीरियसली नहीं करता। उसके बाद है पीटरलैंड। ये इसका फ्रेंड है यंग विटवुड का और इसका मतलब जो नाम है वो उसके करेक्टर से ही थोड़ा बहुत मतलब इंडिकेट होता है, बहुत ज़्यादा इसका प्ले में रोल नहीं है। उसके बाद सर विलफुल विटवुड है। ये जो है वो लेडी विशवुड का नेफ्यू है और इसकी एज जो है वो 40 इयर्स ओल्ड है और ये जो है वो मतलब एक ट्रिप प्लान कर रहा है यूरोप के लिए, जो मतलब मोस्टली अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए एक विजिट किया जाता है। लेडी विशवुड जो है वो उसका ये नेफ्यू है और ये उसकी शादी मिलामेंट से करवाना चाहती है। वो ये समझती है कि मिलामेंट और ये जो सर विलफुल विटवुड है ये एक सूटेबल मैच है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर जो है वो वेटविल है। ये मतलब जो है मीराबेल के वैलेट है, मीराबेल का सर्वेंट है। इसका बिगिनिंग ऑफ द प्ले इसकी शादी जो है वो मिलामेंट की जो मेड होती है फोइबल उसके साथ इसकी शादी होती है। और एक्चुअली ये जो है वेटवेल और सर रॉलैंड जी एक ही मतलब बंदा है। ये सारी मिराबल की प्लानिंग होती है, उसने अपने एक प्लान के जरिए इसको सर रॉलैंड बना के लेडी विशवुड के सामने प्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है फोइबल। ये जो है वो आपकी आवाज आना बंद हो गई है, देखिए। कि उसे बहुत सारे सीक्रेट्स पता होते हैं। हाँ जी जी। उसके बाद हमारे पास है मिनसिंग। ये भी मिलामेंट की एक मेड है। उसके बाद है पैग। ये मतलब मेड है लेडी विशवुड के घर में। सर रॉलैंड जो है वो एक्चुअली मतलब सर वेटवेल ही है जो मीराबेल का सर्वेंट है, लेकिन मीराबेल जो है उसने इसको प्रेजेंट किया है सर रॉलैंड बना के लेडी विशवुड के सामने, ताकि वो मतलब एग्री कर सके मतलब उसको लेडी विशवुड को अपनी और मिलामेंट की शादी के लिए। ये मिसिज मॉरवुड जो है ये इसकी मिस्ट्रेस है मिस्टर फिनल की, और ये बहुत ही हाइपोक्रिटिक सी वुमेन है, मतलब बहुत जेलसी रखती हैं और ये अपने आप को प्रिटेंड करती है ऐसे कि जैसे ये मिस्टर फिनल के साथ बहुत सिंसियर है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन एक्चुअली जो है वो मीराबेल को लाइक करती है, लेकिन मीराबेल जो है वो इसको लाइक नहीं करता। सो दैट्स ऑल। Okay, fantastic. Do you write your comments on in the chat box about this presentation and fantastic presentation, especially reading out the process आपने comprehensive style बताया, fantastic। ठीक है, तो आज जो क्लास में प्रेजेंट हैं इस वक्त और बट उन्होंने कल प्रेजेंट करना है, उनमें से कौन कौन है तो बताएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ग्रुप बी जो है ना उन्होंने प्रेजेंट करना था, हमारा ग्रुप बी है,
उसमें करैक्टर्स हैं और जो है ना प्लॉट एनालिसिस है द वे ऑफ द वर्ल्ड का। तो करैक्टर्स सारे इन्होंने अभी आज कर दिए, बाकी एक प्लॉट रह गया है उसका, द वे ऑफ द वर्ल्ड का, हमारे ही ग्रुप में से। ओके, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपको टॉपिक दिया गया है करेक्टर्स एंड, तो ज़रूरी नहीं है कि ये रिप्रेजेंट कर दिया अल्मास ने सबको, आपके करेक्टर्स को। तो आप सबने इंडिविजुअली भी तो असाइनमेंट्स लिखी है ना, तो वही असाइनमेंट्स जो है ना बेसिकली आपका टॉपिक है। आपने करेक्टर्स को किस तरह लिया है, आपने उसको जो है बायोग्राफी को किस तरह लिया है, राइट। तो जो प्रेजेंटेशन है वो हर बंदे ने इंडिविजुअली प्रेजेंट करना है, राइट। तो वो जो आपकी असाइनमेंट है वही आपकी प्रेजेंटेशन है। बात समझ गए या नहीं? मैं यस समझ सर। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ये समझते हैं कि जो टॉपिक ग्रुप को दिया गया है वो ग्रुप में से एक बंदा भी उसको प्रेजेंट कर देगा तो वो तमाम ग्रुप की तरफ से प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। हर बंदे को इंडिविजुअली जो है वो प्रेजेंट करना है यहाँ 10 मिनट्स 15 मिनट्स मैक्सिमम, राइट, सो दैट his confidence and his presentation power may be built up, right। तो मैं ही वो पूछ रहा हूँ कि नेक्स्ट डे आई मीन फॉर टुमारो हु आर द प्रेजेंटर जो आज प्रेजेंट हैं कोई क्लास में, रेज योर हैंड। यस सर, ग्रुप सी की कल प्रेजेंटेशन है, थीम्स हैं द वे ऑफ द वर्ल्ड की। कौसर है, महविश है सर मैं हूँ। और नजमा। नजमा की आपके तो प्रेजेंट हो नहीं गई आज, प्रेजेंटेशन आपने दे ली थी। ओके, समरा लिया से। समरा आपका टॉपिक क्या है? सर द वे ऑफ द वर्ल्ड के थीम्स। द थीम्स ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो पिग्मिलियन, पिग्मिलियन पे किसका टॉपिक है? पिग्मिलियन पे सर आप, मेरा है प्लॉट एंड कैरेक्टर्स ऑफ पिग्मिलियन। अच्छा तो आपका रेडी हो गए, आप कब कल प्रेजेंट कर सकोगे? जी सर मैं कर दूंगी। ओके ठीक है, तो कल आप ही प्रेजेंटेशन दे देना। स्पेशली क्या है, प्लॉट एंड इश्यूज, कैरेक्टर्स ऑफ पिग्मिलियन। कैरेक्टर्स ऑफ पिग्मिलियन, ओके। अच्छा, और द स्कूल फॉर स्कैंडल्स, ये मुझे इसका प्लॉट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये कौन बयान करेगा जो कहता है कि ये मैं बहुत अच्छे से जो है ना प्लॉट बयान कर सकता हूँ? द सर स्कूल किस फॉर द स्कूल फॉर स्कैंडल्स, इसका प्लॉट कौन प्रेजेंट करना चाहते हैं इन अ फैंटास्टिक वे, जो कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो और हमें समझ भी आ जाए? मैंने ट्राई तो की है, तो सर आप ही कर दो जो बेस्ट वे ना, बेस्ट वे जो प्लॉट को प्रेजेंट कर। आपको सर आपकी हो गई है ना प्रेजेंटेशन? नो सर। हाँ, तो आप जो है ना, आपका टॉपिक क्या है वैसे? सर करैक्टर्स द करेक्टर्स वे ऑफ ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, करेक्टर्स हो गए हैं। आप ऐसा कीजिए जो प्लॉट है ना स्पेशली किसका, द स्कूल फॉर स्कैंडल्स का, उसको तैयार कीजिए, राइट। ओके सर। ओके, तो टुमारो आप जो है ना प्रेजेंट कीजिए द प्लॉट ओके सर जी। इन अ फैंटास्टिक एंड नाइस वे, ठीक है। तो ठीक है, और कोई बात पूछना हो आई एम अवेलेबल एट व्हाट्सएप ग्रुप। कोई भी जब भी आप अपनी असाइनमेंट शेयर करो स्पेशली, तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिए। स्पेशली अपने एमसीक्यूज़ बनाना शुरू कर दें। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनाएंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि उनमें से पेपर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो हर ग्रुप जो है इंडिविजुअली भी कोई बनाना चाहे तो अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है 2020
बना सकते हैं। वैसे ग्रुप वाइज जो आपको दिए गए हैं 20 वो तो मस्ट है ना, तो एज सुन एज पॉसिबल टिल 20 जून कंप्लीट करके सेंड कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, राइट। तो और फिर जो है हम उसको कंपाइल कर लेंगे। ओके चलिए, सर जी। यस हाँ, सर। चलो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, सी यू नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ताला। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज़।